गूगल के अंदर कोई भी एटीएस चेकर ऐसा नहीं है जो आपको बिना प्रीमियम के आपको सही एटीएस को दिखा देगा। ट्रू। ये फैक्ट है। एआई ने इतना वो कर दिया कि सामने वीडियो कॉल पे इंटरव्यू चल रहा है, और उस तरह आंसर चल रहे उसके हैं। आंसर चल रहे हैं और लाइक क्या चल रहा है। मत लिखो 100 स्किल, आपको 100 काम आते होंगे। हम्म। 5 लिखो, वो लिखो जेन्युइन हो और जो अच्छे आते हो जहाँ पे आपका स्किल सेट बहुत अच्छा हो। राइट आई थिंक 50% लोगों को ये भी नहीं पता कि एटीएस होता क्या है आज के टाइम में। राइट। राइट। आज मैं हूँ और एक आप हैं, ठीक है। मैं रिमोट जॉब चाहता हूँ, आप ऑन साइट जॉब चाहते हो, ठीक है। मैं रिमोटली वर्किंग हूँ, उस कंपनी उसी रोल पे, और कंपनी एज और आप वो जॉब चाहते हो एज ए ऑन साइट, तो कंपनी आपको प्रेफर करेंगी, मुझे प्रेफर नहीं करेंगे। राइट। ये जो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपकी हर पोस्ट पे और मेरे भी हर पोस्ट पे आते हैं ना, एक क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स लेकर, क्यों है ये? व्हाई आर दे डूइंग इट फॉर पब्लिसिटी? खाली होता है वो लोग। तो वो पोस्ट वो वायरल हो गई थी, तो उस पोस्ट से हुआ क्या था, मेरे पास पुणे से कॉल आ जाता है, पोस्ट रीड करो अदरवाइज आप पे एक्शन ले जाए। मैंने इसको एक्शन ले लो। वन ऑफ माई फ्रेंड तुलिका नोएडा में रहती हैं, पिछले 2 साल से लगातार काम कर रही हैं, और 2 साल से उनका रिमोटली वर्किंग था तो कर रही थी, तो उनका हाथ ऐसे करके काम करते थे वो, उनका हाथ आज के टाइम में ऐसे ही रह गया। बिग 4 में इतना प्रेशर है, राइट। खाने का टाइम नहीं, पानी पीने का टाइम नहीं, नहीं है। और जो बंदे फाइनेंस में काम करते हैं बिग 4 में, उनकी तो ज़िंदगी मतलब ख़त्म है। हाँ। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Pigeon Hire. I'm your host Vanya Goyal, and today we are diving deep into the world of resumes and LinkedIn profiles with someone who knows it all, Mr. Harshdeep Saxena. Harshdeep is an ATS expert and one of LinkedIn's top 100 creators. He has helped job seekers worldwide to enhance their resumes, LinkedIn profiles, and stand out in the competitive job market. If you're a job seeker or a fresher, you can't afford to miss this episode. Harshdeep will share insider tips on what recruiters actually look for in resumes, the mistakes that could cost you for the job, and how to present yourself in a way that makes employers stop and take a look on your profile. You'll also hear fun and unexpected stories from his experience, like the weirdest resume detail that turned out to be impressive and the quirkiest skill that might just make a difference. So, whether you are trying to get past the ATS, ace your next interview, or create a resume that screams hire me, the episode is packed with practical advice, unique insights, and a touch of humor. Let's help you land your dream job, one resume at a time. So guys, finally we have Harshdeep in here. काफी जद्दोजहद के बाद हमें हर्षदीप को बुलाना पड़ा. So he is busy. What he is busy with, ये भी बहुत बड़ा question है. He is busy in making lives of a lot of job seekers, Correct. helping them with their resume building, and or not only job seekers, but then also the C-suite level people of the industry. He's also helping them, and then whether it's IT industry or some other industry like medical Fintech industry, medical fintech industry, yeah. is helping everybody in building their resumes and making it at par to the current market standards. Correct? So diving into what does Harshdeep do? So Harshdeep, I have seen your profile and you have been into HR for a significant, for almost a decade, right? So then you started and this particular profession of yours. So we want to know, how did you started this journey and how is it helping you and your career? That is this the right decision that you had made? Yeah, it is a right decision. First of all, thank you very much for the lovely introduction, right? And yes, it is a right decision because मैंने लोगों को देखा है, लोगों की जॉब जाती हुई देखी है, लोगों मिलते हुए देखा है मैंने, लेकिन इस एचआर इंडस्ट्री के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक इंडस्ट्री निकल के दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, उनको कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर आप लोग अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हाँ, ये बहुत अच्छा उनका एक सोच है कि हाँ वो कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट नाना करते करते पिछले 1 साल के अंदर 11,000 स्टोरीज में बना चुका हूँ, मतलब 11,000 में बना चुका हूँ, और जिसमें से कन्वर्जन रेट 90% पॉजिटिव है। 10% तो हर जगह कमी होता है, ठीक है, बट 90% मेरा पॉजिटिव रेट है कि मैं जो CV क्रिएट करके देता हूँ वहाँ वो 100% ATS बेस होता है और वर्क करता है। What is ATS? ये क्या नोशन आया मार्केट में? ATS लाइक एक सुनामी बोल सकते हैं। हाँ. आई थिंक 50% लोगों को ये भी नहीं पता कि ATS होता क्या है आज के टाइम में। राइट 50% क्या, आई थिंक 60% लोगों को नहीं पता, नहीं होता है क्या होता है ATS। तो ATS इज लाइक अ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. For just example, there is a company by name is Genpact, and Genpact has some posting a job in the job portal, right? And if your CV is the ATS base, if your CV has been a keyword, and then your CV will be get shortlisted and you will get the recruiter call.
ATS की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, उसे हिंदी में बोलूँ तो कुछ नहीं है, आपके ATS CV आपके CV के अंदर एक नॉर्मल कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स लगे होंगे तब भी आपका CV शॉर्टलिस्ट है, अदरवाइज CV शॉर्टलिस्ट नहीं है। एक चीज़ और होता है कि लोग मुझे बोलते हैं, या मतलब नॉट मुझे बोलते हैं, हर कंपनी में मतलब जो भी रिज्यूम राइटर उन लोग ये बोलते हैं कि सर आपने हमारा CV ATS पे बना दिया लेकिन हमारा CV शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा। अरे भैया अप्लाई कहाँ पे कर रहे हो? सर मैंने लिंक्डइन में अप्लाई किया था। लिंक्डइन तो लाइक एक ऑटोमेशन टूल है ना, आप वहाँ पे अप्लाई करोगे वो तो आपको रिजेक्शन मिल दे देगा ना। आप नौकरी पोर्टल पर जाकर अप्लाई करो, आप सीधे HR से जाकर बात करो, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, तब जाके आपका CV शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, अभी बीच में वैकेंसी आई थी, डेटा डेवलपर की वैकेंसी आई थी, एक वैकेंसी थी और 19,000 CV गए थे उस वैकेंसी के लिए। कहाँ से होगा शॉर्टलिस्ट? राइट। ठीक है, तो लोगों को ना जॉब सर्च, लोगों को ये पता है जॉब करनी है, उन्हें ये नहीं पता जॉब सर्च कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो ये मेरा काम है कि लोगों को बताना, उनको समझाना कि भैया ये तरीका है, ये वे ऑफ, एक तरीका होता है कि हाँ जॉब इस तरह सर्च की जाती है, इस तरह आपको जॉब मिलती है। सो बेसिकली ATS रिज्यूम आपको जो कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, यू आर अ जावा डेवलपर पर फुल स्टैक डेवलपर, सो आपको मेक श्योर करना है यू आर पुटिंग दोज कीवर्ड्स इन योर रिज्यूम एंड हर्षदीप इज हेल्पिंग यू टू ऐड दोज कीवर्ड्स। वैसे तो बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, AI टूल्स हैं अवेलेबल दैट कैन हेल्प यू एनहांस योर रिज्यूम टू मेक इट ATS फ्रेंडली। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। होता क्या है कि लोग अपना CV बनाने से पहले ना ATS स्कोर चेक करते हैं, गूगल पर डाल के गेट फ्री ATS स्कोर। राइट। गूगल के अंदर कोई भी ATS चेकर ऐसा नहीं है जो आपको बिना प्रीमियम के आपको सही ATS स्कोर दिखा देगा। ट्रू। ये फैक्ट है। जब तक आप प्रीमियम वर्जन यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि हर कंपनी पैसा बनाने के लिए बैठे हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ, चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो। अगर कोई कंपनी अपना एनहांस टूल या फिर कोई भी एक ऑटोमेशन टूल गूगल पर डाल रही है ATS चेक के लिए, तो ये तो एक चेंज चली आ रही है कि भैया हाँ आपने CV अपलोड किया, आपने ATS CV चेक कर आपका स्कोर आया 68, वो तो कम ही निकलेगा, वो सही नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपने CV बनवा लिया है और आप प्रीमियम यूज़ कर रहे हो तो ही आपका ATS स्कोर सही दिखाएगा, अदरवाइज ATS स्कोर सही नहीं दिखाएगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, यू जस्ट मेंशन कि लोगों को जॉब सर्च करना ही नहीं आता है। जॉब सर्च इज ऑल्सो एन आर्ट एंड यू ऑल्सो गाइड देम कि जॉब सर्च आपको कैसे करना है। सो आज के टाइम पे नौकरी तो ऑब्वियसली है, नौकरी तो फर्स्ट गो ही होता है फॉर एवरीबडी, बट देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पोर्टल्स अवेलेबल एज वेल। एंड देन हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि टेक वाले जो लोग हैं ना 80% सब यही चाहते हैं कि हमें रिमोट जॉब मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसी भी एक पोर्टल्स बन चुके हैं जहाँ पे सिर्फ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सो हाउ डू यू गाइड सम गाइडेंस एंड देन व्हाई दे शुड रीच आउट टू यू ओनली फॉर दिस गाइडेंस? हाउ कैन यू हेल्प देम? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये बोलते हैं कि मुझे रिमोट जॉब ही करनी है, तो भैया आप नौकरी ना ही करो तो बेटर है। ठीक है उसका रीज़न ही यही है कि लाइक ये कोविड टाइम तो है नहीं, कोविड वेव था तो अभी रिमोट वर्किंग हो रहा था, आज के टाइम में दिया है ऑल्सो वर्किंग, आप डेली बेस पे आ रहे हो, मैं आ रहा हूँ, हर कोई आ रहा है ना जॉब करने के लिए। ठीक है, तो रिमोट वर्किंग वाला सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ लाइक कोविड की वेव थी, लोगों को बोल दिया भाई रिमोट वर्किंग करो, हाइब्रिड वर्किंग करो, अपने घर से काम करो, आप लिए एडजस्ट रहेगा। ठीक है, अब लोगों ने उस चीज़ को रूटीन में ले लिया कि भाई मैं तो भैया रिमोटली करूँगा। कंफर्ट जोन तो बहुत गलत चीज़ है ना। वो कहते हैं ना, एक मेरा एक फ्रेंड थे, 28 साल उन्होंने कंपनी को दी है, उनकी नौकरी अभी छूटने पर चली गई, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नौकरी चली गई और पिछले 2 साल से जॉब के ढूंढ रहे हैं बिकॉज अपने कंफर्ट जोन में थे। चेंज करना ही बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, बिना चेंज के तो कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा ये आपने बोला रिमोट वाली बात, आपने मुझे बोली कि वो कैसे मुझसे रीच आउट करे, तो भैया मैं साफ बोलता हूँ अगर किसी को रिमोट जॉब चाहिए तो मेरे से रीच आउट मत करो, बिकॉज मैं रिमोट वैकेंसी जॉब नहीं दिलवाता हूँ। 1-2% हाँ दिलवा सकता हूँ, बट मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई मैं लाइक अगर किसी से कोई ऊपर रीच आउट कर भी रहा है कि सर मुझे जॉब चाहिए तो भैया ओनली रिमोट चाहिए, सो इट इज अ वेरी टफ नोशन कि बिल्कुल वो हमारे लिए भी टफ है। Right. ठीक है, चाहे 10 पोर्टल आ जाए या 50 पोर्टल आ जाए, रिमोट वैकेंसी अभी के टाइम में बिकॉज कोई वेव नहीं है तो इस वजह से रिमोट वैकेंसी बहुत कम है। Right. टेक में वैकेंसी हो सकती हैं, ठीक है, बट वहाँ पर बहुत कम है क्योंकि अल्ट्रेशन और रिसेशन हर जगह पर है। राइट। ठीक है, रिमोट जॉब, अब सपोज दैट कि आज मैं हूँ और एक आप हैं, ठीक है, मैं रिमोट जॉब चाहता हूँ, आप ऑन साइट जॉब चाहते हैं। ठीक है, मैं रिमोटली वर्किंग हूँ उस कंपनी में उसी रोल पे, और कंपनी एज और आप वो जॉब चाहते हो एज अ ऑन साइट, तो कंपनी आपको प्रेफर करेंगी, मुझे प्रेफर नहीं करेंगे। राइट। ठीक है, तो ये जो लोगों ने एक मेंटालिटी बना रखी है कि भाई मुझे रिमोट जॉब चाहिए, तो इसे निकाल दो दिमाग से, बेस्ट रहेगा। ऑन साइट और हाइब्रिड चल जाता है बट रिमोट नहीं रहता आज के टाइम में। और वो एक किक भी तो मिलती है, रोज सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, ऑफिस में काम करो। अब लोग 20-60 किलो से 80 किलो को जाते हैं बैठे बैठे रिमोट जॉब के अंदर। वो कहते हैं हमारी सिटिंग जॉब है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, बट कुछ नहीं होता, वो सिर्फ खत्म है उन लोगों की जिंदगी, कुछ नहीं है। इवन हमने भी 2 साल कोविड वेव में हमने करा है काम, बट अब मुझे कोई बोले कि भैया आप घर से काम करो, नहीं हो पाएगा क्योंकि आदत ही नहीं रही उस चीज़ की।
कैसे हो जाएगा? और जब तक एक 4 दीवारी के कमरे में रहने से अच्छा है कि आप बाहर निकल के चीज़ों को सीखो, राइट। ठीक है? 4 लोग मिलेंगे, 4 लोग मिलेंगे, 40 बातें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है? वो कहते हैं जब तक बाहर निकलोगे नहीं कुछ सीखोगे नहीं, घर में बैठ के क्या सीख लोगे भाई? एंड इनफैक्ट आई हैव सीन दिस कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना और जो लोग बाहर निकल के काम कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस में भी उनका देखोगे देयर वुड बी वेरी मच डिफरेंस इन देयर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि वो लोग को एक्सपोजर ही नहीं मिल पा रहा है। वो लोग घर में बैठे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अपना दिन स्टार्ट किया, खत्म किया, काम किया, सबमिट किया, दैट्स इट। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। अब ऑफिस में जाते हैं तो क्या होता है, 4 लोग मिलते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कॉफी पीने मिलती है, वो भी एक एनवायरनमेंट, वो भी एक लाइफ का पार्ट है ना। आप घर में चाय पीते रहोगे, कब तक चाय पीते रहोगे? बाहर निकल के देखो तो। वो घर में हमेशा मोस्टली लोग चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते और हैं। मैंने एक चीज़ और देखी है या करेक्ट, मैंने एक चीज़ और देखी है कि जिन्होंने अपने करियर इनिशियल कोविड वेव के टाइम पे एज ए रिमोटली स्टार्ट किए थे, आप उनका कॉन्फिडेंस उठा के देख लेना, और जो आज की जो फ्रेशर्स हैं जो आज जॉब करने जा रहे हैं, आप उनका उठा के देख लो, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो वहीं के वहीं रह गए। जो फ्रेशर आज जो जॉब कर लेंगे और जो रिमोट वाले बंदे के काम करना चाहता है, बहुत डिफरेंट है दोनों के अंदर। कम्युनिकेशन डिफरेंस है, नॉलेज बहुत डिफरेंस आएगा, हर चीज में अलग दिखेंगे आपको। सो डू यू ऑप्टिमाइज द रिज्यूम्स बेस्ड ऑन द जॉब एप्लीकेशन, या फिर एक जेनेरिक रिज्यूम आप ऑप्टिमाइज करके देते हैं? सपोज वो डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर। कस्टमर को अपने एग्जिस्टिंग रिज्यूम में कुछ काम करवाना है, और बेस 90% लोग नए रिज्यूम बनवाते हैं हम लोगों से, ठीक है? तो उसको हमारे पास अलग अलग पोर्टल्स हैं। मैं ओवरलीप पोर्टल ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ओवरलीप हो गया, इनहैंसिया हो गया, जेटी हो गया, सबके हम लोग PM यूज़ करते हैं, साल भर के PM ऑलरेडी पड़े रहते हैं, हम उसके थ्रू रिज्यूम बनाते हैं, ठीक है? अब सपोज डेट कोई CV आया मेरे पास, और हाँ ATS के अंदर एक चीज़ और होता है कि आज के टाइम में मैंने बहुत सुना है कि 1 पेज CV। आपको लगता है कि जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस होगा उसके लिए 1 पेज CV इनफ रहेगा? बट 6 पेजर भी नहीं अच्छा लगेगा। मैं तो 6 पेज पे जा ही नहीं रहा, मैं तो 1 पेज से लेकर 2 व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ द CV? ये भी एक क्वेश्चन है। ATS में साफ लिखा हुआ है कि इफ यू हैव लेस देन 5 years experience then your CV will go to the 1 page, right? If you more than 5 to 10 years plus experience, then your CV will be go to the 1.5 to 2 pages, right? And if you more than 10 to 20 plus experience, then you will go to 2 to 2.5 pages. इससे ज़्यादा CV नहीं होता है, राइट? ठीक है? अब मेरे पास एक CFO का प्रोफाइल आया था कुछ दिनों पहले, एंड ही जस्ट आस्किंग कि हर्ष मेरे को ना 1 पेज CV चाहिए, और उनका CV ही 9 पेज का था। मैंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 9 पेजेस CV यू कैन मैं कहाँ से कर दूंगा? मैं कहा कोई नहीं कर पाएगा सर, मेरे पास से मुझे मत दो पैसे, आप कहीं और से करवा लीजिए, बट वो चीज़ नहीं हो पाएगी। कह रहा हर्षदीप हो जाएगा, मैं सर हो ही नहीं पाएगा। तब जाके उनका CV मैंने नाना करते करते भी 2 पेज में क्रिएट करके दिया। अब जब 2 पेज में, अच्छा ये भी चीज़ होता है, चलो 2 पेज में क्रिएट कर दिया, आपने ये चीज़ नहीं डाली इसके अंदर, आपने ये चीज़ अपडेट नहीं, सर कहाँ से लाऊंगा? आप ही बताओ, जब मार्जिन ही नहीं बचा उसके अंदर, मैं कहाँ से डालूंगा? और एक बार CV क्रिएट होने के बाद जब कस्टमर बोलता है सर एडिटिंग करानी है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, ये फैक्ट है कि हमें एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। हमारे नाना करते करते मेरी टीम का, एक बंदे की टीम का, एक टीम बंदे का 4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं एक एडिटिंग के अंदर। तो इसलिए हम लोग कस्टमर से पहले पूरी डिटेल ले लेते हैं कि सर मैं आपको ये सब चीज़ करके दूंगा, आप इसमें राजी हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। सो फ्यू थिंग्स जो आपको लगता है कि रिज्यूम में होनी ही चाहिए कि वो सेलेक्ट हो जाए। सबसे पहले तो हेडर बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि मेनली आपका हेडर और समरी पे जाएगा। 90% लोग क्या करते हैं कि समरी बहुत छोटी सी लिख देंगे और नीचे KRA, एक्सपर्टीज, अचीवमेंट्स सब डाल देंगे। अब एक मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले, 4 साल एक्सपीरियंस था और उसका CV 3 पेज का था। उसको मैंने कैसे न कैसे उसको मैं लिया 1 पेज में आराम से ले आया था। सर की अचीवमेंट डाल दीजिए, एरिया एक्सपर्टीज डाल दीजिए, स्किल्स डाल दीजिए, एडिशनल स्किल्स, एडिशनल एक्सपीरियंस। मैं भाई क्या करवाना चाह रहे हो? अच्छा डाल के दे दिया, मुझे काम डालना था। जब मैंने ATS चेक किया तो 97 से ATS था, वो आ गया 8% पे। तो मेरा तो काम बढ़ गया ना उस चीज़ को लेकर। तो लोग समझते नहीं इस बात को, लोगों को लगता है कि रिज्यूम राइटिंग बहुत आसान चीज़ है। नहीं, इसमें बहुत दिमाग खर्च होता है, लिखना पड़ता है। हम लोग ChatGPT यूज़ नहीं करते हैं। हमारी सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ ये है कि वी आर डोंट यूज़ ChatGPT। हमारे पास टीम है, मैंने आपको बताया था कि डोमेन टू डोमेन टीम है मेरे पास, ठीक है? अगर मेरे पास किसी HR का CV आया तो उसी मैं क्रिएट करके देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है? तो लोग चीज़ समझते नहीं कि वो समझते हैं कि भाई आपने मेरे पैसे दे दिए, अपना कंटेंट दे दिया, रिज्यूम दे दिया, अब वो करके दे देगा। ऐसे नहीं होता। ये बहुत एक क्योंकि हम किसी को जॉब दिलवा रहे हैं, एक तरीके से जॉब दिलवाने होंगे एक तरीके से इस काम को, क्योंकि अगर रिज्यूम उसका अच्छा नहीं होगा तो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट की वजह से जॉब नहीं मिलेगी। तो लोग को मैं चाहता हूँ भाई समझो इस चीज़ के बारे में। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या की एरियाज हैं कि नहीं आपको डालने के लिए। सो गाइस, आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है अपना रिज्यूम बेसिकली, और
एडिशनल स्किल्स नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेट्स फोकस ऑन प्राइमरी स्किल्स बिकॉज समरी डालो, समरी अच्छी डालो ना। Right. आप अपने, अगर आप 3 पेज का CV यूज कर रहे हो तो आप उसको उसमें से समरी निकाल के सबको कंटेंट निकाल के समरी में डालो ना, क्योंकि इंटरव्यू पहले समरी पड़ेगा आपकी वो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप सपोज डेट कि कहीं पे वैकेंसी आई है, HR की वैकेंसी आई है, ठीक है, फॉर जैसे एग्जांपल HR वैकेंसी आई है, एंड HR वैकेंसी में क्या होता है कि सबसे पहले मैं खुद एक HR हूँ, अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूंगा तो मैं समरी देखूंगा, मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं उसके एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मुझे पता ना कि मैं किस चीज़ की हायरिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपनी देखूँ। अब इतनी HR के अंदर या मेरे अंदर जो भी इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यूअर में इतनी नॉलेज तो होगी ना कि भाई ये कौन सी कंपनी में काम करता आ रहा है, इसको पता होगा, तो हमसे मैं सिर्फ समरी देखूंगा, उसके अचीवमेंट देखूंगा, सिंपल, मुझे और कुछ नहीं देखना होता, और बाकी तो सब डिपेंड करता है उसके कम्युनिकेशन के ऊपर। HR इंडस्ट्री में हो गया, या फिर जावा इंडस्ट्री हो गया, या फिर डेटा सेंटर इंडस्ट्री हो गया, यहाँ सब पे अलग डिपेंड करता है। ये सब से डिपेंड करता है इंटरव्यू की सोच के ऊपर। और ये मैं कभी नहीं कहता कि भैया एक पेज CV बना के लेके जाओ, 10 साल वाला एक्सपीरियंस के बंदे को मैं कभी एक पेज का नहीं बना के दूंगा, क्योंकि 8 पेज तो दिखा देगा, नॉर्मल सी बात है, 8 पेज तो किसी इंसान ने बनाया ना, सॉफ्टवेयर किसी इंसान ने बनाया ना। आज से पहले भी तो रिज्यूम चलते थे ना, आज से पहले भी लोग रिज्यूम रेटिंग करते थे, और बहुत अच्छी रिज्यूम रेटिंग करते थे, क्योंकि अभी तो चलो लोग ChatGPT यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई प्लीज राइट अ गुड समरी, राइट अ क्रिएटिव समरी, और कंटेंट निकल के आ गया, और लोग देखते भी नहीं, उसे कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो उस चीज़ के बारे में, समरी पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी एक्सपर्टीज पे काम करना पड़ेगा, कोर कॉम्पिटेंसी बहुत मेन होती है रिज्यूम के अंदर, ये 3 चीज़ें काम करो, CV शॉर्टलिस्ट, और इन तीनों चीज़ों के अंदर ही आपके कीवर्ड्स लगे होते हैं। आपके कोई भी कीवर्ड्स किसी KRA में नहीं लगे होंगे, ठीक है, किसी एजुकेशन सेक्टर में नहीं लगे होंगे, सिर्फ समरी, कोर कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स। हाउ इम्पोर्टेंट एडिटिंग इज, मतलब अगर आप अनएडिटेड रिज्यूम भेजो किसी क्लाइंट को और ये भेजो एडिटेड रिज्यूम, तो इसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या मेक श्योर करना है कि ये हम जो एडिट कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं अपना फोन नंबर ही नहीं डालते, बहुत देखे हैं, है ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोन नंबर डालो। कुछ लोग अपना फोन नंबर हाइड कर देते हैं और सिर्फ ईमेल डालते हैं ये बोल के कि मुझे बहुत कॉल जाएंगी, ये भी नोशन चल रहा है मार्केट में, ठीक है। सो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लाइक डूज एंड डोंट्स फॉर अ रिज्यूम? नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, मेल ID बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर ये चीज़ नहीं डालोगे तो आपके पास कॉल कैसे आएंगे, ये आई थिंक मतलब डोंट माइंड, लड़कियों को ज़्यादा होता है सर मेरा नंबर मत डालो, मेरी मेल ID डाल दो, मेरी, अब लड़कों का रहता है सर मेरा मेल मत डालो, मेरा नंबर डाल दो, मेल ID से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भैया सबको डरवाना पड़ता है, ये रिज्यूम है, और आज के टाइम में रिज्यूम है सबसे ऊपर, क्योंकि पहले जो मैं रिज्यूम देखता था आज से 7-8 साल पहले, नेम, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, और फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, और ये लिखा होता था। तो वो ज़माना चला गया भाई, अब ये बहुत ऑटोमेटेड ज़माना आ चुका है, ठीक है, चीज़ें बहुत चेंज हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप सब कुछ लिखो, आपकी ये तो मेन है ना नंबर, और यार अगर आप नंबर छुपा पा रहे हो तो फिर या तो आप में खोट है यार, सामने वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, नंबर तो मत छुपाओ, एटलीस्ट नंबर से कोई क्या कर लेगा, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। आज के टाइम में ट्रू कॉलर में सब कुछ ओपन है ना, कि भाई अनसेव कॉन्टेक्ट नंबर ऑटोमेटिक कट जाता है, कर रखो, क्या दिक्कत है। तो लोग समझते नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि आप रिज्यूम में नंबर डलवाओ, अपना मेल ID डलवाओ, इवन एडिशनल मेल ID और डलवा दो, राइट, बिल्कुल डलवा के रखो। एक अच्छे लोगों में एक चीज़ और रहती है, हर्षदीप सक्सेना, जैसे मेरा नाम हर्षदीप है, हर्ष सक्सेना 111111, मतलब एक मेल ID का एक तरीका होता है, राइट, ठीक है, इट हैज टू लुक प्रोफेशनल, नॉर्मल सी बात है, कूल हर्ष @ हर्ष। अब मैंने एक का देखा था लाइक फंकी सुमायरा @gmail.com, मैंने मैडम प्लीज चेंज योर मेल ID, यस, ठीक है, ये कोई एक तरीका नहीं है, आप अपने CV को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। कह रहे सर, तो मुझे बोलती है कि सर HR तो है, क्या दिक्कत है, मैंने ऐसा नहीं होता, अगर वो किसी लेवल पे बैठा है ना, एक GM रोल का, अगर आप किसी लेवल पे HR बन के बैठा है ना, तो उसमें कुछ तो गट्स होंगे, तभी तो बन के बैठा हुआ है वो, ठीक है। तो ये सब फंकी वंकी हटा के नॉर्मल मेरे कैटेगरी दीजिए, आपसे नहीं हो पाती तो मैं कर देता हूँ। उसने मुझे बोला सर मेरे से नहीं हो पाती, आप ये बोल रहे हैं आपसे नहीं हो पा रही है, मैं खुद करके दे दूंगा, मेरे 5 मिनट काम है, मैं दे दूंगा करके। तो ऐसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं कभी कभी। तो ये डूज, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये सिंपल आंसर है कि सब कुछ ऐड कराइए, क्योंकि आपको इंटरव्यू रीच कैसे करेगा, आपके नंबर से, आपकी मेल ID से। 90% लोग, आज के टाइम बता रहा हूँ वान्या, एक सर्वे निकला था, 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल मेल ID खोल के नहीं देखता आज के टाइम में, वो सभी देखते हैं जब उनके फोन अकाउंट में बैलेंस आता है, बैलेंस जाता है, क्रेडिट और डेबिट, बस। ये बहुत गलत चीज़ है, अपनी मेल ID देखो। अगर आप जॉब सर्च करने बैठे हो ना, अगर आप नौकरी अप्लाई कर रहे हो, रिजेक्शन मिल आएगा तो भी मेल पाएगा, सिलेक्शन में आएगा तो भी मेल पाएगा। अब आपको कोई इतना कोई खाली नहीं बैठा, कोई कॉल करके आपको बताएगा, तो अपनी मेल ID भी डेली बेस पे ओपन करना सीखिए, ये नहीं कि क्रेडिट और डेबिट के मैसेज आएंगे तभी देखेंगे। अब एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि
एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, उसके बहुत सारे स्किल्स है उसे प्रेजेंट करनी है, सो वो अपनी स्किल्स को कैसे हाईलाइट कर सकता है अपने रिज्यूम में? जो उसने काम करा है, हम्म एक वर्ड है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। हम्म आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उठा लो, स्किल्स उठा लो और कोर कॉम्पिटेंसीज, ये तीनों चीज़ें एक है, लेकिन इनका बोलने का तरीका अलग है, इनको दिखाने का तरीका बहुत अलग होता है। अब सपोज मैं एक एचआर रह चुका हूँ, तो मैं क्या ऑन बोर्डिंग मेरा बहुत एक्सपर्टीज है, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट मुझे बहुत अच्छी करनी आती है, गल्फ की अच्छी से मैं करता हूँ। तो मतलब जिस चीज़ में मेरा हुनर बहुत अच्छा है, मेरा स्किल सेट बहुत अच्छा है, मैं वही चीज़ टॉप पे लिखूँगा, और मैं वो चीज़ नहीं लिखूँगा जहाँ अगर ये तो मेरा मानना है, मुझे और को नहीं पता, बट आज के टाइम में अगर आपका स्किल सेट 100% है, वहाँ पे एक कर्सर आता है कि भाई मेरा 50% है, 60%, 80% है, जो हम टूल बनाते हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ कि अगर आपको एंट्री रिक्रूटमेंट आपको कैसी आती है, वो बोलता है कि मैं अच्छा, कोई झूठी बोल देते हैं, वो बोलता है सर हाँ कर लेता हूँ। कर लेता हूँ क्या मतलब होता है, यानी कि कर लेता हूँ सर, आता है लेकिन इतना नहीं आता है, तो तुम 80% पे हो, राइट? ठीक है। स्किल सेट है, जो स्किल से आप मुझे बता रहे हैं, कभी ये मत लिखो कि ऑनबोर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एंट्री रिक्रूटमेंट, ऐसे मत लिखो। ऑनबोर्डिंग 100 है, एंट्री रिक्रूटमेंट हाई है 100, मतलब इम्पैक्ट होता है, उससे दिखता है। आप मत लिखो 100 स्किल, आपको 100 काम आते होंगे, 5 लिखो, वो लिखो जेन्युइन हो और जो अच्छे आते हो, जहाँ पे आपका स्किल सेट बहुत अच्छा हो। राइट। सो अभी आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोग ना अननेसेसरी चीजें बस भर देते हैं रिज्यूम में, और फिर उनसे वो पूछने बैठो तो वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते। तो कुछ लोगों को लगता है कि यार क्या ही पूछ लेंगे, सब थोड़ी ना पूछ लेंगे, रिज्यूम में ऐड कर दो, शॉर्ट लिस्ट तो हो जाएगा। सब पूछते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, राइट? ऑब्वियसली, लाइक या तो लिखो मत ना। बहुत मैंने अपने 10 साल के करियर में बहुत ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जो बहुत झूठ बोलते थे। सर ये भी आता है, अच्छा आता है तो बता भी क्या आता है। अच्छा सर मैंने ना ये काम करा, लाइक मैंने एक बंदे से पूछा था कि आप प्रीवियस कंपनी के अंदर, वो उसने मुझे बोला सर मैं जियो में काम करता था। अच्छा जियो में काम करते थे, मैं एचआर जानता हूँ, मैं किसकी टीम में थे, कि सर मैं इसकी टीम में था। मैं ठीक है, मैं बात करता हूँ, मुझे बहुत बंदा जेन्युइन लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसको मैं सिलेक्ट कर लेता, अच्छे लेवल पे रोल पे सिलेक्ट कर लेता। जब मैंने उसका बीजीवी निकलवाया तो वो फ्रॉड करके आया हुआ, तो उसने एक ही दिन काम की, 2 दिन काम किया था और वो मोबाइल वोबाइल लेके भागा, मतलब भागा हुआ था जियो से। तो ऐसे लोग भी आते हैं कि रिज्यूम में कुछ भी लिखवा देंगे और रट के अपना इंटरव्यू रट के रखते हैं, लेकिन बीच में से कोई क्वेश्चन पूछो तो वो आंसर नहीं आंसर दे पाते हैं। तो मैं तो आज के टाइम में ये भी देखा है कि एआई ने इतना वो कर दिया कि सामने वीडियो कॉल पे इंटरव्यू चल रहा है और उस तरह आंसर चल रहे हैं, उसके आंसर चल रहे हैं, और लाइक क्या चल रहा है। इसलिए तो लोग फेस टू फेस, आप आज के टाइम में मैंने एक चीज़ देख लिया कि लोग फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। जो इंटरव्यू है ना, फाइनल इंटरव्यू फेस टू फेस ही होगा भैया, आपको नहीं होगा। एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हैदराबाद की बात थी, मैंने उसको बंदे का इंटरव्यू लिया था, कॉग्निजेंट की बात थी। कॉग्निजेंट हमारा इनिशियल क्लाइंट था स्टार्टिंग डेज के अंदर। तो उस बंदे का मैंने इंटरव्यू लिया, उसके 3 राउंड लिए मैंने उसका इंटरव्यू। वो बंदा बहुत अच्छा, एंड इसका एंड सुनना, बंदा बहुत अच्छा, उससे सारे आंसर आ रहे, सब कुछ वो सही दे रहा है। मैं ठीक है भाई, मैंने फाइनल कर देता। उसको मैंने पैकेज दिया 18 LPA का, ये बात है आज से 6 साल पहले की। मैं इसको पैकेज दे दिया, उसका ज्वाइनिंग हुआ कॉग्निजेंट हैदराबाद के अंदर। और जब नॉर्मल सी बात है, अब जिसने इंटरव्यू लिया तो मैं उसको अच्छे बोलूँगा, उसको मैंने बीजी सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ ओके हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया। विद इन ज्वाइनिंग मेरे पास कॉग्निजेंट का जो कॉर्पोरेट एचआर उसका फ़ोन आता है कि हर्षदीप तूने इसका इंटरव्यू लिया था। मैंने हाँ मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, क्या हो गया? कह रहा यार इंटरव्यू टाइम पे तो कुछ और था, अब कुछ और है। जब हमने पूरा उसका बैकग्राउंड निकलवाया तब उसके भाई ने इंटरव्यू दिया था। और हैदराबाद में आई मीन नोट टू आई मीन ऐसा कुछ नहीं है किसी को हम डाउन करना चाह रहे हैं, बट हैदराबाद में ये बहुत चल रहा है। और हमारी कंपनी में खुद ऐसे बहुत केस हुए हैं कि इंटरव्यू कोई और दे रहा है, ज्वाइन कोई और कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा नोशन चल रहा है हैदराबाद में। इसीलिए लाइक आई हैव स्टॉप्ड रिलाइंग वर्चुअल कैंडिडेट्स ऑफ हैदराबाद, क्योंकि वो कुछ ना कुछ परेशान जरूर करते हैं आपको एट द एंड मोमेंट। ये मेरा एक्सपीरियंस तो खुद अच्छा नहीं रहा है। ये फैक्ट है। एंड देन नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर रिसीविंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट, बिकॉज आई थिंक दिस इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, तो वो लोग स्पेशली लिख कर भेजते हैं नो हैदराबाद कैंडिडेट्स, वो लोग बोलते हैं, क्योंकि ये लोग रिपीटेडली ऐसा कर रहे हैं कि इंटरव्यू कोई और दे रहा है। एंड देन हमने तो क्या प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, हमने पिक्चर्स देनी स्टार्ट कर दी थी ये चेक करने के लिए कौन इंटरव्यू दे रहा है और कौन, और पीछे से बोलता भी कोई और था और ये लिपसिंग करते थे। वो वाला भी इनका चला था बीच में ना, कोरोना टाइम में, सो दे वर डूइंग इट। ओके, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट बीजीवी बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस। सो अभी लोगों को ऐसा लगता है आज के टाइम में कि अगर हम आज छोड़ के चले जाएंगे किसी कंपनी को, इवन अगर हम एब्सकॉन्ड कर दें या कुछ कर दें,
और फिर वो गैप फिल करने के लिए लिख तो देते हैं उस कंपनी का नाम, लेकिन कहीं ना कहीं से बीजीवी कंपनीज कर लेती हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आगे जाके बीजीवी हो जाता है। इनफैक्ट कुछ तो 2-2 महीने के इंटर्न्स के ही बीजीवी आ जाते हैं हम लोगों के पास। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप मेक श्योर करो कि थ्रू आउट योर जर्नी आपका एक जो रिलेशन है अपने एम्प्लॉयर के साथ और अपने पीयर के साथ अच्छा रहे। और क्या एक्चुअली बीजीवी होता है कंपनीज में? बीजीवी एक ऐसा वर्ड है ना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो लोग बहुत लाइटली लेते हैं। राइट। बहुत लाइटली, अरे कुछ नहीं होगा देख लेंगे। पुरानी कंपनी में कर्म कांड करके आए हुए हैं और सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पूरे इंडिया के अंदर एक जर्मन बेस्ड कंपनी ऑथन ब्रिज, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव के अंदर भी है। पूरे इंडिया के अंदर ऑथन ब्रिज को लाइसेंस मिला हुआ है वेरिफिकेशन करने, बीजी वेरिफिकेशन। जो वैलिड वेरिफिकेशन करते हैं वो ऑथन ब्रिज करता है। हम लोग भी करते हैं वेरिफिकेशन, आप लोग भी करते होंगे, मेक श्योर, राइट। तो बीजीवी का मतलब ये होता है कि भैया आपने जो पुराने अपने काम करे हैं उसको सही करके चलो। अगर आप प्रेजेंट कंपनी में सही नहीं हो तो आप अपनी इन फ्यूचर जो कंपनी आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप नहीं सही कर पाओगे। ऐसे लोग भी देखे हैं, वीपी लेवल तक के लोगों को मैंने रिजेक्ट होते हुए देखा है, ठीक है। बज़वर्क्स के, नॉट बज़वर्क्स, इनोफसोर्स के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल पे वीपी थे, सिर्फ कुछ छोटी सी बात थी, लाइक थोड़ा बहुत कुछ केस था, तो उस वजह से उनका बीजीवी गया था। तो उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव काम करता, तब मैंने बीजीवी का मतलब समझा था कि भाई ये होता है बीजीवी। तो बीजीवी इज लाइक कि यार अच्छा बन के चलो, अच्छा करके चलो। देखो यार कि अप्स एंड डाउन हर कंपनी में होते हैं, प्रेशर आप हर कंपनी में झेलोगे। नौकरी के 9 काम 10वां काम जो भी करना होता है, ये सिंपल है, ठीक है। तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते, आप में इतना पेशेंस नहीं है तो आप मत करो नौकरी, आप अपना बिजनेस कर लो, ठीक है। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग करी है, बहुत लोगों की बातें सुनी है, ठीक है। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि यार मैं इसको उल्टा पलट के जवाब दूँ, मेरा बीजी बिगाड़ दे। बिकॉज मुझे पता नहीं कि अगर ये मेरा मैनेजर है और मैं इसको उल्टा बोल दूंगा तो मेरा कल को जिस कंपनी में जाने वाला हूँ उस कंपनी मेरा बीजीवी खराब हो जाएगा। और एक बार अगर बीजीवी रेड मार्क हो गया, आप 6 महीने गए, राइट। सेकंड टाइम बीजीवी आपका रेड मार्क हो गया, 12 महीने गए, थर्ड टाइम हो गया आपका प्रोफाइल ब्लॉक्ड है। तो एटीएस ने इस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करा हुआ है, नॉट एटीएस, ऑटोमेशन ने इस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करा हुआ है कि अगर आप कोई भी चीज़ गलत करके निकलते हो प्रीवियस कंपनी के अंदर। मैं ये कहता हूँ कि बीजीवी मैंने उन लोगों को रिजेक्ट होते हुए देखा कि सपोज डेट कि कोई पिछली कंपनी में काम कर रहा था और सबने मैनेजर से 500 उधार ले लिए थे, तो भी उसका बीजीवी रिजेक्ट कर दिया मैनेजर ने गुस्से में आके। क्योंकि हम किसी का, हम मानने वाले का हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले का, सोचने वाले दिमाग को नहीं रोक सकते ना। उससे सिंपल रेड मार्क करके बस मेल भेजना है, उसे क्या पता सामने करियर खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी हैं, जहाँ जाने वाले हैं, बना के चलिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि भाई कॉर्पोरेट हर कोई वानया नहीं होता ठीक है, जो अपना स्टार्टअप करके बैठे थे आप, ठीक है, या हर कोई हर्ष नहीं होता कि अब हाँ ठीक है मैंने एक स्टेप उठा लिया, रिस्क लिया था लाइफ के अंदर, ठीक है, स्टेप उठा लिया, यहाँ आ गए, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि आपके ब्रेड एंड बटर आपका जॉब से चलने वाला, तो क्यों किसी से बिगाड़ना, क्यों अपना बीजीवी खराब कराना। तो ये लोग बहुत समझते हैं कि यार बहुत आसान है बीजीवी क्लियर हो जाकर, लेकिन नहीं भाई, बहुत बीजीवी बहुत टफ होता है, ठीक है। लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं बीजीवी। क्योंकि अगर मैं टॉप एमएनसीज की बात करूं, 5 पॉइंट्स का बीजीवी होता है। अगर आपको उसमें 3 पॉइंट्स मिल गए तो भी आप रिजेक्ट हो, आपको 4 पॉइंट्स मिल गए तो भी एमएनसी देखेगा कि भाई ये 1 पॉइंट कटा किस लिए, ठीक है। और अगर उसका जेन्युइन रीजन होगा तो ही आपको हायर करेगा, अदरवाइज नहीं हायर करेगा। True. That's true. Harshdeep, I recently saw an article of yours about Big Four companies, myths about them, how to burst the bubble over there. So can you talk about it? क्या Big Four? Because Big Four बहुत चल रहा है मार्केट में. Okay, like Big Four. मेरा कोई ऐसा मेरा मोटिव नहीं था कि मैं आर्टिकल डालूं इसके लिए। मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे पास किसी का मैसेज आया था बिग फोर्स के लिए कि यार शेयर कुछ बिग फोर्स को लेकर है था कुछ, तब मेरे में थोड़ा चला अगला आर्टिकल रेफरेंस आया था कि चल हर्ष भाई अगले अब आर्टिकल डालूंगा, वो बिग फोर्स को लेकर डालूंगा। थोड़ा सर्च करा उसके बारे में तो पता लगा बिग फोर्स भाई बबल ही एक तरीके से वो तो ठीक है, वहाँ तो अगर आप गए तो डूब ही जाओगे, ठीक है। मतलब मैं मना नहीं करता, मैं किसी को नहीं कहता कि आप बिग फोर में मत जाओ, आप बिग फोर में जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत कैसे भी नहीं होगी। बट बिग फोर इज जस्ट लाइक अगर आप बिग फोर सोच के जा रहे हो तो आप ये सोच के मत जाना कि आपका बहुत जल्दी वहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि बिग फोर का नाम ही लगा। अगर वो कोई, मैं PwC की बात करता हूँ या मैं EY की बात करता हूँ, EY मेरा बहुत पसंद है, मुझे EY बस मैंने बहुत नए केसेस सुनने में आए। वर्क कल्चर, वन ऑफ माई फ्रेंड तुलिका नोएडा में रहती हैं, पिछले 2 साल से लगातार काम कर रही हैं और 2 साल से उनका रिमोटली वर्किंग था तो कर रही थी, तो एक ही सिस्टम, एक ही टेबल चेयर बैठ के काम कर रही थी। उनका हाथ ऐसे करके काम करते थे वो, उनका हाथ आज के टाइम में ऐसे ही रह गया है। बिग फोर में इतना प्रेशर है, राइट,
खाने का टाइम नहीं, पानी पीने का टाइम नहीं। है। और जो बंदे फाइनेंस में काम करते हैं बिग फोर्स में, उनकी तो ज़िंदगी मतलब ख़त्म है, हाँ, कुछ नहीं है। मतलब सुबह उठे 7 बजे, लॉग इन किया, रात के 11-12 कब बज गए कोई कुछ नहीं पता फैमिली चल लाइफ रहा। ही नहीं है उन कुछ लोग नहीं की। है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ माई रिलेटिव इज ऑल्सो देयर इन EY। सो मतलब सैटरडेज भी काम हो रहा है, संडेज भी काम हो रहा है, कहीं जा रहे हैं तो साथ में लैपटॉप जा रहा है, कोई ऑफिस कुछ इमरजेंसी आ गई है तो इधर गाड़ी चल रही है, इधर मीटिंग चल रही है, बिल्कुल लैपटॉप में साइड बिल्कुल। रखे। तो मुझे लगता है मैं इनका यार क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, व्हाट आर गिविंग टू योर चाइल्ड, मतलब दे डोंट हैव टाइम टू टॉक टू देयर चाइल्ड एज वेल। सो मतलब दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? बट देन मेरा ये कंपनी गलती की नहीं है, सॉरी ये गलती कंपनी की नहीं है एक्चुअली, ये गलती एम्प्लॉयज की है, who are letting this happen, who are doing it। मुझे लगता है कि अगर you can आप anytime leave such a culture and switch the job, why are they still staying there? मेरे को ये नहीं समझ आता। वर्क लाइफ बैलेंस ना बिग फोर कुछ नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस, इंसान सुबह उठ रहा है, सिस्टम बैठ रहा है, शाम को सिस्टम से हट रहा है, अपने बच्चों से टाइम नहीं निकल, मतलब वाइफ के टाइम नहीं है, बच्चों के टाइम नहीं है, माँ बाप के टाइम नहीं है। ठीक है, बिग फोर वो चीज़ है कि अगर आप गए तो गए, क्योंकि या तो आप पैसा देख लो, लेकिन पैसा भी नहीं है। पैसा एक अच्छे लेवल पे पैसा है। हाँ। लेकिन अब मैं स्टार्टिंग डेज की बात करूँ या फिर स्टार्टिंग लेवल की बात करूँ, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, 7 LP स्टार्टिंग है, 7 LP 10 LP, इसमें कुछ नहीं हो पाता ना। आप तो अपना पूरा बैलेंस खराब कर रहे हो। इससे आप क्यों कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लो ना, आप क्यों EY की तरफ जा रहे हो, क्यों बिग फोर की तरफ जा रहे हो? आपको जो मतलब जरूरी नहीं है कि MNC ज्वाइन करो, आपको वही पैसा, आपको एक अच्छी, मैं तो मेरे लाइक EY में मेरा खुद के क्लाइंट काम करते हैं, तो मैं बुरा नहीं बोलूँगा EY को, बट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। एक गए तो गए। लेकिन बदनाम तो स्टार्टअप से। स्टार्टअप बदनाम कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है। मैं स्टार्टअप को कभी गलत नहीं बोलूंगा। स्टार्टअप में अगर कोई बंदा अपना स्टार्टअप कर रहा है तो वो सोच समझ के कर कि रहा होगा। स्टार्टअप वर्क कल्चर इज बैड ऐसा बोलते हैं ना, कि कभी भाई नहीं, वो कभी नहीं। स्टार्टअप बहुत काम करवाते हैं, 14 घंटे काम करवाते हैं, 16 घंटे काम करवाते कभी हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। स्टार्टअप वो देखो वाने सबका अलग अलग सोच होता है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ आज आप भी काम करिए, आपने आई थिंक काम करा है बिग फोर्स में? नो नो आपने? मैंने बिग फोर्स में काम किया है। मेरे स्टार्टिंग कंपनी थी एसेंचर में, मैंने काम किया था, और एसेंचर के अंदर मैंने 6 महीने थी आई थिंक 4 महीने काम किया था, और 4 महीने बाद मैं समझ चुका था कि भाई ये मेरे लिए नहीं बना है, ठीक है, तो भैया कहीं और चल, हर्ष नहीं हो पाएगा यहाँ पे। एक तो पॉलिटिक्स, जो कि मुझे बहुत नफरत है पॉलिटिक्स को लेकर, ठीक है, क्योंकि बहुत गलत होता है लोगों के साथ, देखा भी है मैंने, इसलिए मैं पॉलिटिक्स को लेकर ज़्यादा मतलब सपोर्ट करता हूँ कि भाई मतलब पॉलिटिक्स ना करो तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो बिग फोर्स की पॉलिटिक्स, बिग फोर्स में वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज, और सैलरी रेंज बहुत कम होती है बिग फोर्स के अंदर, ठीक है। लोग सोच तो लेते हैं अरे भैया मैं EY में काम करता हूँ, मेरा बेटा EY में काम करता है, मेरी बेटी EY में काम करती है। नहीं यार, उनसे पूछो जो लोग काम कर रहे हैं। जब तक आप चीज़ों में घुसोगे नहीं, आपको पता कैसे लगेगा कि भाई अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सुबह उठ रहे हैं 7 बजे, लैपटॉप चाहिए, ड्राइव कर, जहाँ आपने बताया कि ड्राइव कर रहे हैं तो भी इधर मीटिंग चल रही है, इधर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम करने का फ़ायदा क्या, राइट? ठीक है। ऐसा पैसा भी किस काम का जो आपको लाइक मतलब सुकून ना दे सके, ठीक है। तो भले कम कमा लो लेकिन सुकून से 2 रोटी खा लो, वो बढ़िया है। तो मैं बिग फोर्स को कभी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं परेशान हूँ बिग फोर्स को लेकर। कभी कभी मैसेज आते हैं सर बिग फोर्स में जॉब लगवा दो, मैंने भाई लगवा दूंगा, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे बिग फोर्स, क्योंकि बिग फोर्स में आप गए तो गए। अच्छा, आप बहुत सारी पोस्ट डालते हैं लिंक्डइन पे जॉब सीकर्स अराउंड, सो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आती है? भाई इंस्पिरेशन कहीं से नहीं आती, कहीं से दिख जाती है, दिमाग में आइडिया आ जाता है, चल ठीक है ये डाल देते हैं। मेरा आइडियल है प्रियंका आहूजा, ठीक है। मेरा आइडियल है प्रियंका आहूजा, प्रियंका इज माय आइडियल। प्रियंका वाज अ गेस्ट ऑन द प्रीवियस पॉडकास्ट, मैं देखा था मैंने। हाँ। प्रियंका मेरा आइडियल है, और एक आइडियल है स्वाति माथुर भी, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट लिखती हैं, उनका मुझे कंटेंट मोटिवेशनल कंटेंट लगता है। इवन आपका कंटेंट मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। और एक और है सौरभ सचदेवा करके हैं, तो मतलब इन्हीं में से कहीं निकल जाता है। अब जैसे मैंने आपका ना नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है कि वान्या का लाइक I know पोस्ट हो Harshdeep गई, is mostly the first 10 people who like my post ठीक almost है। every time. वान्या ने पोस्ट डाली और मेरे पास नोटिफिकेशन, अच्छा ठीक है वान्या का पोस्ट ठीक है, मैं कमेंट भरी नहीं कर पाऊँ, लेकिन लाइक मैं कर दूंगा भाई, हाँ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई क्या कंटेंट डल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं भले लाइक मैं किसी चीज़ से अवेयर रहना पाऊँ, मतलब अवेयर हो जाता हूँ, लेकिन हाँ आपका कंटेंट मैं जरूर देखता हूँ। आपका कंटेंट हो गया, प्रियंका कंटेंट, अभी प्रियंका थोड़ी देर पहले कंटेंट डाला तो अभी नोटिफिकेशन आ गया था फ़ोन पे, तो मैंने वही चेक किया था। तो प्रियंका कंटेंट मैं डेली देखता हूँ, आपका कंटेंट, तो मुझे यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलती है चीज़ों को लेकर कि हाँ भाई अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं कि भाई जो अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, और लोग कॉपी भी करते हैं, तो करो कॉपी, क्या दिक्कत है। इवन मैंने आपकी को एक पोस्ट कॉपी की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है भाई, जो है सो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पोस्ट कॉपी की थी। सब लोग कहीं ना कहीं कॉपी कर ही रहे हैं किसी को, इट्स जस्ट दैट हाउ यू आर
presenting it. Why not? आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो? Right. और टू बी ऑनेस्ट वो पोस्ट वायरल चली गई थी। पुणे का पॉश केस हुआ था ना, वो पोस्ट आई थिंक मई अप्रैल की बात थी। हाँ, अप्रैल मेरी में। भी वायरल हुई हाँ, तो वो पोस्ट वो वायरल हो गई थी। तो उस पोस्ट से हुआ क्या था, मेरे पास पुणे से कॉल आ गया था कि ये पोस्ट डिलीट कीजिए। थी। अच्छा। आया था मेरे पास कॉल, मेरे पास पुणे से कॉल आ गया था कि ये पोस्ट डिलीट करो, अदरवाइज आप पे एक्शन ले जाएगा। मैंने इसको एक्शन ले लो। तो फिर मेरे पास जो मैंने पोस्ट जिसका एक्सीडेंट हुआ था, नहीं जिस बंदे ने एक्सीडेंट किया था, उस को लेके बड़ा ही आदमी था हाँ, वो, हाँ, हाँ। तो उसके पीए का फोन मेरे पास आया था। अच्छा, बट ऐसी तो n नंबर ऑफ पोस्ट थी, तो कहाँ तक डिलीट कराओगे? उसके पीए का पोस्ट आ गया था और पीए का कॉल आ गया था और उसने मुझे लाइक थ्रेट दिया कि हर्ष ये डिलीट करो नहीं तो आपको उठा ले जाएगा। इवन किसी न्यूज चैनल से कॉल और आ गया था। मैंने भाई आपको जो करना है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जो चीज डलेगी उस पर नॉर्मल सी बात है, उस पर 1 करोड़ व्यू चले गए थे। हाँ। ठीक है, 1 CR से ऊपर और व्यू मेरे थे। 5 CR। आपके 5 CR थे वो भाई साहब, वो पोस्ट वायरल हो रही है। मैंने भाई अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा, मैं सोच रहा था मान्य कॉन्टेक्ट करूँ नहीं करूँ। मैंने मान्य कैसे करेंगे। देखिए, मुझे किसी का कोई थ्रेट कॉल नहीं आया। इनफैक्ट मेरे पास न्यूज वालों के मैसेज आए कि आप इसके ऊपर इंटरव्यू करोगे, तो मैंने कहा नहीं ये पॉसिबल नहीं है हाँ, हमारे नहीं, लिए। हमसे हमारा ना इतना ही भैया, इतना ही। हमें कोई कहीं पे विक्टिम कार्ड नहीं बनना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि टीम में आपके मेंबर्स तो बहुत होते हैं, बट देन आपको पता होता है ना किसके अंदर वो स्किल Potential है, है, पोटेंशियल skills है, तो आप उसी के पीछे पड़ते हो। Correct. अब जैसे हमारी टीम में भी, हर टीम में हमें लगता है कि इस बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और हमें चाहिए कि हम इसको हमें इसके ऊपर टाइम लगाना है, तो हम हमारे लिए वही गो टू पर्सन होता है, कुछ भी Correct. पूछने के लिए, करने के लिए, है ना। तो वही चीज है, आप सबसे तो नहीं बात कर सकते ना हर दिन। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। Right. सो वही चीज है। ठीक है, और कुछ आप टिप्स देना चाहते हो हमारे जॉब सीकर्स को इन द जॉब सर्च? भाई दूसरों से अपना को कंपेयर करना बंद करो कि भैया अगर वो इतना कमाता है तो मैं भी इतना कमाऊंगा। हाँ, आप कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे आप आके उस पोस्ट पे पहुंच पाओगे। लोग क्या करते हैं कि आज मैं इस कंपनी में हूँ, 3 महीने में उस कंपनी में रहूंगा। ये लोगों का सबसे गंदा नजरिया होता है कि भाई 1 साल के अंदर 4 कंपनी चेंज करते हैं। आपकी सैलरी तो बढ़ जाएगी। आप ये देखो कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ कंपनियां कितनी हैं, आपका बीजीवी कितना अटकेगा। स्टार्टिंग में मैंने भी करा, 1-2 बार करा मैंने, बट समझ में आ गया था मेरे को। बट आज के टाइम में लोग आज बजवर्क्स में काम, आज विप्रो में काम कर रहे हैं, फिर एसेंचर में आ गए। कंपनी का काम है ऑफर देना, ठीक है, ऑफर देना वो अपने पे डिपेंड करता है। लेकिन वही है भाई, लोग भाई ठीक है इतना यहाँ पे इतना अच्छे पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे इतना अच्छे पैसे मिलेंगे, तो उसको ना करके आप एक जगह पे स्टेबल लेके काम कीजिए। आप अपने स्टार्टिंग इनिशियल डेज के अंदर 4 से 5 साल का स्टेबिलिटी करियर बना लीजिए। इसके बाद आप कहीं भी चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग इनिशियल डेज के अंदर एक करियर को बिल्ड करके आ चुके हैं। अगर आपने किसी कंपनी को 5 साल दे दिए तो यू आर अ ट्रस्टवर्थी पर्सन। और अगर आप वहीं पे आप 5 साल के अंदर 10 कंपनी चेंज करके आ चुके हो तो भैया यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्थी पर्सन, राइट। जॉब हॉपिंग इज नॉट अ गुड थिंग, राइट, बिल्कुल। अब लोगों को देखा कि किसी का नोटिस पीरियड चल रहा है, 2 महीने नोटिस पीरियड चल रहा है, वो उसको ऑफर है, 2 ऑफर हाथ में, ऑफर हॉपिंग, सर फिर ऑफर चाहिए, मैं फिर जॉब सर्च करूंगा, तो वो चीज़ नहीं होती। मतलब मन में लालच है, सब पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप कहाँ रुकोगे आप? या तो आप में इतना स्किल सेट हो किसी, आपको अब ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव आप सीईओ पे पोस्ट पे बैठ जाओगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लोग बहुत जल्दी जॉब सर्च करना, चीज़ों को नहीं समझना, अपने काम को लाइक समझना नहीं, उनको देखना कि हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता। अगर कोई कंपनी आपको पैसा पे कर रही है, अगर आप कोई कंपनी आपको 1 लाख रुपये पे कर रही है महीने का, तो आपसे वो 6 लाख की डिमांड भी करेगा। ट्रू, जाहिर सी बात है। तो वो करके देना पड़ेगा आपको। अब उसके लिए चाहे मेरा बॉस ऐसा, मेरा चाहे मेरी पोस्ट पे जाओ, कहीं भी जाओ, मेरा बॉस ऐसा, मेरा बॉस वैसा, ऐसा नहीं हो पाता। आपको करके देना पड़ेगा, बिकॉज आप कंपनी के एक लॉयल एम्प्लॉय हो। अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो तो करो, अदरवाइज आप चेंज करके और बैठ सकते हो। ठीक है गाइस, सो आई थिंक ये तो चलता ही रहेगा। एंड देन हर्षदीप was also identified as the Fevicon content creator. How was that feeling, Harshdeep? अरे बहुत, मुझे तो पता नहीं लगा मेरा नाम फेविकॉन पे आ गया है। अच्छा। मेरे को तो आनंद देशमुख को नहीं, स्वाति माथुर का कॉल आया था कि हर्ष जस्ट ओपन और लैपटॉप में नाम पता क्या हो गया, तो शी सजेस्टेड कि जा फेविकॉन साइट पे जा। मुझे पता नहीं फेविकॉन क्या होता है, सच में मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था फेविकॉन। उस पे रैंक नंबर 56 इन एंटायर टॉप 100 क्रिएटर्स। ये कैसे हो गया? वाह। तो मैंने ठीक है हो गया, अच्छी बात है, बट ठीक है, बट उस दिन के बाद से लाइफ बदली है। जब नाम आ गया ना तब लाइफ बदली, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल डेज के अंदर तो लाइक लिंक्डइन तो लाइक मैं भी जॉब सर्च करता था कि हमारी जॉब मिल जाएगी, थोड़ा कंटेंट देख लेंगे, इसका कॉपी उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, वहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, कोविड की वजह में इतना खाली बैठा कि समझ में आगे कंटेंट होता क्या है, राइट, कंटेंट एंड होता इंपॉर्टेंस क्या ऑफ कंटेंट। करेक्ट भाई, कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है।
और आज के टाइम में एक लिंक्डइन में अभी लिंक्डइन तो लाइक अभी अनाउंस भी करा है कि वो इसको दूसरा इंस्टाग्राम बनाएगा, ठीक है। तो अपने वीडियो उस पर एक नया सेक्शन So आया, guys, वीडियो ये जो आप सेक्शन। बाबा डालते हो LinkedIn is not Instagram. Yes, LinkedIn यस is लिंक्डइन Instagram. इज इंस्टाग्राम, करेक्ट। हाँ, लिंक्डइन इज इंस्टाग्राम भाई, सब आ चुका वीडियो है, आ चुका है ना उसमें, रील्स आ चुके, रील्स रील आ सेक्शन चुके हैं। ओपन हो चुका है, राइट। ठीक है। तो ठीक है, बनाओ, डालो, कंटेंट क्रिएटर हर कोई बनो, अच्छा, influencer हर कोई बनो। एक इंस्टाग्राम से मुझे याद आया, आप भी डेली कंटेंट पोस्ट करते हो, मैं भी करती हूँ। ये जो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपकी हर पोस्ट पे और मेरी भी हर पोस्ट पे आते हैं ना, एक क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स लेकर, सो मतलब क्यों है ये? व्हाई आर दे डूइंग इट फॉर पब्लिसिटी? खाली होते हैं वो लोग, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं भाई, अब यार मैंने सपोज दैट मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स लेकर या फिर मैंने सिक लीव को डाल दिया, वो मेरा कंटेंट था, मैंने डाल दिया, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मत करो लाइक, आप मत करो रीशेयर उसको, मैंने आपसे नहीं बोल रहा ना। अगर मेरे 100 लाइक आ रही है, मेरे पास 10,000 इंप्रेशन आ रहा है एक पोस्ट पे, वो मेरा है ना। मैं आपसे नहीं कहता आप आओ मुझे फॉलो करो, मैं किसी को नहीं कहता, ठीक है। लेकिन अब जिसका काम है उसको क्रिटिसिज्म करना, उन्हें जेनजी पीपल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि भाई हम वो मेरे पोस्ट के, आपके, मेरे, प्रियांक के, सबके पोस्ट पे जाता है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो डिलीट कर देता हूँ मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने भाई रखना ही नहीं है मुझे नेगेटिव कमेंट, क्योंकि होता क्या है ना, एक नेगेटिव कमेंट आपकी पोस्ट पे आ गया, अच्छा नेगेटिव, और जब लिंक्डइन वायरल वो भी वही चीज करता है, आपका पोस्ट एक आपने पोस्ट अपडेट करा, उस पे नेगेटिव कमेंट आ गया, सडनली आप देखोगे वो कमेंट वायरल चला गया, उस पे लाइक स्टार्ट लाइक, और फिर वो चीज जो आपका इंप्रेशन है वो बहुत बढ़ेगा, लेकिन वो जो पोस्ट है वो डिसलाइक में चली जाएगी। फिर लोग उसमें एक हंसी के इमोजी भी आ गया आजकल तो लिंक्डइन के ऊपर, वो समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो वो चीज बहुत खराब है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो तो लाइक वो तो सबसे डिलीट करो उसको, बेटर रहेगा। और करने वाले तो करते हैं, उसमें क्या रोकना यार, इतने अपना लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है, पूरे वर्ल्ड में लिंक्डइन आज के टाइम में टॉप पर है, राइट, ठीक है। तो कितने लोगों का अकाउंट हम ब्लॉक, लोग बोलते हैं अपनी फोटोज क्यों डाल रहे हो, आप ये पोस्ट बिना फोटो के भी डाल सकते थे। मैंने बताया तो कि लिंक्डइन इज इंस्टाग्राम ना, चाहे वो स्वाति माथुर हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी एक मिश्का राणा, वो डालती हैं, ठीक है। और मेरे पास नंबर भी उनसे बात होती रहती है, डालते उसमें क्या दिक्कत है यार। अब उस पर लोग कमेंट करते हैं कि भाई बिना पोस्ट बिना फोटो के डाल सकते हैं आप कंटेंट, ये है वो है, तो भाई वो उसकी मर्जी ना, वो उसका अकाउंट है, आप मत करो ना लाइक। वो भी साफ लिखती है चीज के लिए, उसने अभी बीच में कमेंट डाल दिया था किसी को कि भाई मैंने आपको नहीं बोला आप मेरी पोस्ट पे आके लाइक करो कमेंट करो, मैं तो आपको नहीं बोलती ना, सिंपल। तो लोगों का काम डालना है भैया, उसको इग्नोर मारो, क्योंकि अब हिंदी में क्या ही बोलूँ चीज़ के बारे में, थोड़ा अलग हो जाएगा वो चीज़, लेकिन काम लोगों का बोलना है। आप इधर सुनो, इधर से निकाल दो। ऐसे मैं देखता हूँ अच्छा कमेंट नेगेटिव है, ठीक है डिलीट कर दिया, नहीं देखना मेरे को, नहीं रखना, क्योंकि उस चीज़ से चलो मैं तो एक बार ठीक है निकल जाऊँगा, लेकिन अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उस पर नेगेटिव कमेंट वायरल हो गया, तो जिनको हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, वो लोग भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। और लिंक्डइन का एल्गोरिथम ऐसा है कि आपका एक कंटेंट वायरल हो गया तो आपका भी कंटेंट वायरल होता ही रहता है। अच्छा एक चीज़ और मुझे आपसे पूछता हूँ कि सही टाइमिंग क्या होती है कि एक सही टाइमिंग क्या है लिंक्डइन में पोस्ट करने का? क्योंकि कुछ लोग दिन में 5-6 पोस्ट करते हैं, कुछ लोग एक भी करते हैं। प्रियांक भाई 3 से 4 पोस्ट डेली डालते हैं। आपका 3 से 4 पोस्ट देखा है मैंने। तो कोई सर्टेन ऑफ टाइम है? मेरा तो मूड है भाई, मैं तो बोल देता हूँ, मैं तो मेरा फ्रेंड है, मैं उनको मेरा लिंक्डइन ये मैनेज करते हैं, मैं इनको बोलता हूँ भाई कभी तेरा मन डाल दे, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे विश्वास है, ठीक है। मुझे नहीं एक्चुअली, लेकिन टाइमिंग थोड़ी मैटर करती है। सो अभी क्या होता है ना, जैसे, और एक्चुअली आपका कंटेंट भी मैटर करता है। अब जैसे कुछ कंटेंट है ना, जैसे आप एक्चुअली में थोड़ा सा प्रोडक्टिव कंटेंट अगर डालोगे, किसी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स डालोगे, और अगर आप वो मॉर्निंग में डालते हो तो लोग सुबह आते हैं मॉर्निंग में पहले सुस्ती के साथ। तो संडे सैटरडे क्यों नहीं आता फिर? नहीं संडे सैटरडे तो डेड रहता है ऑलमोस्ट लिंक्डइन, खत्म है ना। सो एकदम वो पहले ही इतने लेजी मूड में आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपने उनको एक आगे से ज्ञान पेल दिया तो वो ज्ञान लेते ही नहीं है सुबह सुबह। सो एक अगर आप मॉर्निंग में डाल रहे हो लाइक 10 बजे 11 बजे, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल पोस्ट आपका, या फिर उनको एक पुश करने वाला पोस्ट थोड़ा चलता है मॉर्निंग में। एंड देन अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उनको देना चाह रहे हैं, देन आई थिंक आपको आफ्टरनून में 3 PM 4 PM टाइप अगर आप डालोगे, या फिर कोई न्यूज है तो उस टाइम पे न्यूज तो आपको तभी कवर करनी पड़ेगी, वरना आप पीछे रह जाओगे। सेम टाइम पे, करेक्ट। हाँ। सही बात है। सो वही बात है। मेरा कंटेंट का ऐसा होता है कि सुबह एक टाइम फिक्स कर रखा है 11:05 का, उस 11 से 5 में 11:10 में कंटेंट डाल के हट जाना, फिर पूरे लिंक्डइन ओपन मत करना, क्योंकि हम लोग लिंक्डइन को बहुत कम टाइम देते हैं, वहाँ पर मतलब टाइम ही नहीं होता है,
इवन अभी लास्ट टाइम जो मैंने पॉडकास्ट कैंसिल किया था वो मेरी एक कॉल थी राजस्थान की, मुझे जाना पड़ गया था, एक वर्कशॉप था रिज्यूम्स का, तो वहाँ पे कोई 200 पीपल्स थे, स्टार्टिंग फ्रेशर्स थे, तो उनके रिज्यूम मेकिंग था, उन्हें समझाना था, तो उसमें बहुत बिजी था। तो हमारे लिंक्डइन का तो ऐसा होता है कि सुबह 11:05 पर कंटेंट पोस्ट होगा, कंटेंट पोस्ट कर दिया हमने, और शाम को मूड हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इवन और मेरे यहाँ पे सबके प्रोफाइल्स हैं, सब लोग अपने प्रोफाइल पे लगे रहते हैं कि भाई अगर मैं एक अपना स्टार्टअप लेके बैठा हूँ तो आप लोग भी अपना करके बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा कंटेंट वायरल जा रहा है, आप मेरे कंटेंट को रिपोस्ट मत करो, आप अपना कंटेंट खुद से डालो, राइट। क्योंकि कुछ नहीं पता कब एल्गोरिथम ऊपर चला जाए और आपका कंटेंट वायरल हो जाए। So this was Harshdeep, and guys, I hope you have learned something throughout the session, and he is very much active over LinkedIn. So आपको कुछ भी कभी भी कुछ भी guidance चाहिए हो, he is always available, and we'll also be tagging his profile in the description section over here over YouTube. And if you want to see Harshdeep again, you will have to share a lot of love on this video, and you will have to subscribe our Please YouTube subscribe channel. Pitch and Hire. Yes, follow Pitch and Hire, all the pages of Pitch and Hire, LinkedIn, Instagram, YouTube. Follow Harshdeep Harshdeep Saxena, Saxena LinkedIn page, and follow Vanya Goyal LinkedIn Yeah, page. sure. Vanya Goyal LinkedIn page too है। So we are trying कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा content आपको convey करें, and if you have any suggestions for us, we are always open for suggestions. So please do route them. Till then, take care. Bye bye. Keep subscribing. Thanks. And Bye.